آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہتے ہیں کہ حکومت کا ٹی ایل پی سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ ٹی ایل پی نے ڈیڈ لائن فروری سے بڑھا کر 20 اپریل کر دی ہے۔ معاہدے کے تحت ٹی ایل پی کے مطالبات پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ ہماری حکومت سے پہلے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے واضح موقف نہیں اپنایا۔ ٹیم ان کے ساتھ ٹی ایل پی کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، معاہدہ ہو گیا کہ جو انہوں نے اپنی ڈیٹ دی تھی فیبری کی، یہ چلی گئی اب 20 اپریل کے اوپر۔ معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھ دیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ کسی حکومت نے اتنا زیادہ سٹینڈ نہیں لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی کی جاتی ہے۔ اگر کسی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے، مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنل سٹینڈ لیا ہے۔ اس وقت صرف میں نے بات کی ہے جو فرانس میں ہوا، اور ترکی کے اردوغان پریزیڈنٹ نے بات کی ہے۔ باقی مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹس بات نہیں کر رہے۔ جب تک مسلمان کم از کم 20 یا 25 مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس جب بات کریں گے تب اس کا امپیکٹ ہوگا۔ یہ بھی آپ کو یقین دلا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ ان کی اب او آئی سی کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، یو این میں بھی بات کر دی ہے، لیکن یہ جیسے جیسے ہم اور مومنٹم پکڑے گی اب افیکٹو ہوگی۔ حکومت اور ٹی ایل پی میں معاہدے کے مندرجات ARY نیوز نے حاصل کر لیے۔ معاہدے کے نکات میں کہا گیا ہے کہ 16 نومبر 2020 کے معاہدے پر حکومت نے اپنا عزم دہرایا۔ معاہدے کی شقوں کو 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے طے کیے جائیں گے۔ 4تھ شیڈیول میں شامل ٹی ایل پی کارکنوں کے نام نکالے جائیں گے۔ ملکی دفاعی میں ایک اور اہم پیش رفت، پاکستان نے کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق بابر کروز میزائل 450 کلومیٹر تک زمین اور سمندر میں ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر کروز میزائل کا تجربہ ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وہیکل کے ذریعے کیا گیا۔ چیئرمین نیسکوم ڈاکٹر رضا سمر، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد علی اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ چیئرمین نیسکوم نے مسلح افواج کے تربیتی معیار، آپریشنل تیاریوں، ویپن سسٹم کی ہینڈلنگ، سائنسدانوں اور انجینئرز کی ملکی اسٹریٹجک صلاحیتوں کی ترقی میں کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق صدر، وزیر اعظم اور سروسز چیفز نے اس کامیاب تجربے پر جوانوں کو مبارکباد پیش کی۔ سپریم کورٹ میں اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن کے صدارتی ریفرنس پر سماعت۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ قانون سازی کرنے والوں نے خفیہ رائے شماری کی شق شامل کی۔ قانون سازوں کی مرضی ہے کہ خفیہ ووٹنگ برقرار رکھیں یا نہ رکھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سینٹ کے گزشتہ انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوئے تھے، کیا خفیہ ووٹنگ آرٹیکل 226 کے تحت ہوئی تھی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ خفیہ رائے شماری انتخابی قوانین کی شق 122 کے تحت ہوئی تھی۔ بلدیاتی انتخابات پر بھی آرٹیکل 226 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سینٹ اور اسمبلی الیکشن آئین کے تحت ہوتے تو الیکشن ایکٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ آئین کے تحت ہونے والے انتخابات کا الیکشن ایکٹ میں ذکر ہی نہیں۔ الیکشن ایکٹ ختم کر دیں تو سینٹ انتخابات ممکن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشنز کا شیڈیول جاری کر دیا ہے اور کل سے کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع ہو رہی ہے۔ عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ سینٹ الیکشن 2018 میں ووٹوں کی خرید و فروخت ویڈیو کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی کو 1 ماہ میں سفارشات پیش کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ سینٹ الیکشن 2018 میں ووٹوں کی خرید و فروخت، گندے دھندے میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے MPAs کی ویڈیو کی تحقیقات کے لیے وفاقی وزیر فواد چودھری، شیری مزاری اور شہزاد اکبر پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے، جو 1 ماہ میں رپورٹ دے گی۔ کمیٹی ضمیر کے سوداگروں کا کھوج لگا کر سفارشات وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی نہ صرف الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے سے متعلق تجاویز پیش کرے گی، بلکہ ملوث افراد کے خلاف فوجداری کارروائی کے امکانات، کیسز نیب، FIA اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے پر بھی تجاویز دے گی۔
चंद रोज पहले 2018 के सेनेट इलेक्शन के लिए वोटों की खरीदोफरोख्त की वीडियो सामने आई थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान के सामने नोटों के अंबार लगे थे। अरकान गिनती के बाद गड्डियां बैग में भर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शंस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 3 मार्च 2021 को होंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। रिटर्निंग अफसरान भी तैनात। शेड्यूल के मुताबिक 48 नशिस्तों के लिए 12 से 13 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 से 16 फरवरी को होगी। 17 से 18 फरवरी तक कागजात नामजदगी की मंजूरी या नामंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें दी जा सकेंगी। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा की जाएगी। 22 फरवरी को उम्मीदवार कागजात वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया है कि सियासी जमातें नामजद उम्मीदवारों को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करें। कागजात नामजदगी के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान भी मुकर्रर कर दिए हैं। इस्लामाबाद में जफर इकबाल, पंजाब में गुलाम इसरार, सिंध में एजाज अनवर चौहान, खैबर पख्तूनख्वा के लिए शरीफुल्लाह आरो होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला केपी महमूद खान भी शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ते। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन पर गुफ्तगू में पीडीएम की तहरीक और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने सदारती ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया और सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक किया। कहा पीडीएम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुश्तरका तौर पर काम करना होगा। लॉन्ग मार्च धरनों से मुतालिक भी मुशावरत की गई। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत की गई। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें सियासी मामलात और लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू की गई। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी तबादला ख्याल हुआ। और सुल्तान मोहम्मद खान को खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बाकायदा तौर पर फारिग कर दिया गया है। महकमा इंतजामी उमूर ने डिनोटिफिकेशन का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सुल्तान खान को कानून और पार्लिमानी उमूर की वजारत से फारिग कर दिया गया है। सुल्तान मोहम्मद खान पर 2018 में सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने का इल्ज़ाम है। इस सिलसिले में उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सूबाई हुकूमत को पहले ही इरसाल कर दिया था। एक बदनुमा दाग जो सेनेट इंतखाबात पर लगा हुआ है वो अरकान की हॉर्स ट्रेडिंग का है। ये कहना है लियाकत शाहवानी का। अरकान अपनी पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जाकर वोट डालते हैं। सीक्रेट बैलेटिंग है तो निशानदही मुश्किल हो जाती है कि कौन सा वोट फरोख्त हुआ। जिसने फरोख्त नहीं किया तो वो भी शर्म महसूस करता है। दाग जो जुड़ा हुआ है सेनेट इंतखाबात में कि असम्बली अराकीन जो है और ट्रेडिंग का हिस्सा बनते रहे हैं, अपनी पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कास्ट करते रहे हैं। सीक्रेट है बैलेट, आइडेंटिफाई होना मुश्किल होता है कि कौन सा वोट फरोख्त हुआ है। तो जिसने अपना वोट फरोख्त नहीं किया वो भी शर्मसार और नादिम महसूस करता है। बहुत सारी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फरतुल्लाह बाबर साहब बैलेट की हिमायत में तजावीज़ दिए थे, कमिटमेंट किया था कि जो सेनेट के इंतखाबात है ओपन बैलेट के जरिए होंगे। ख्वाजा साद रफी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 में रिश्वत वसूली की वीडियो की मौजूदगी का जिक्र किया था। वज़ीर आज़म अपना हाफिजा तेज करें, ऑप्शन कभी महदूद नहीं होते। देखना होता है कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करें। पीडीएम की पेशकदमी जारी है, इसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म 2018 में आपने इस वीडियो का जिक्र किया था, आपका हाफजा शायद कमज़ोर हो गया तो अपना हाफजा तेज़ करें। सियासी इंतकाम की ये बदतरीन कार्रवाइयाँ हैं जो आप सब देख रहे हैं, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? जिस दिन जादू का महल गिरेगा ये ताश बिखर जाएगी। हर तरह का माफिया पीटीआई के अंदर मौजूद है। उन्हें दूसरों में सुराख नजर आते हैं, अपने ब्लैक होल उनको नजर नहीं आते। हमारे दौर में भी जो एहतसाब का नारा था, मैंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, वो भी गलत बात थी। तो ये जो एहतसाब की बातें करते हैं और करके अपने मुखालफिन को टारगेट करते हैं, ये सारा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कभी बिकता नहीं है। ये एक लगता है एक माहौल बन रहा है, जब वो हुकूमत जाती है उसके साथ ये सारी गर्द भी रुखसत हो जाती है। ऑप्शन महदूद कभी नहीं होते, सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करना है। अभी लॉन्ग मार्च है, अभी असेंबलियों के अंदर एहतजाज की बात है, वो चल रहा है। पीडीएम की पेशकदमी जारी है और इसको रोका नहीं जा सकता।
वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को फंड्स देने की तरदीद। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा सेक्रेटरी ख़जाना की रिपोर्ट को तसल्ली बख्श करार देते हुए केस निपटा दिया। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में जवाबदेह थे। वज़ीर आज़म उस वक्त जवाबदेह हैं जब मामला उनसे मुताल्लिक हो। हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर आज़म से नहीं पूछा जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म में जवाब वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी से मांगा गया था। जो एतराज़ आज कर रहे हैं वो कल क्यों नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईनी सवाल किसी भी सतह पर उठाया जा सकता है। किसी रुकन असम्बली को तरक्याती फंड्स नहीं दिए जा सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज साहब और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फ़रीक हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड देने की खबर की तरदीद की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म का जवाब काफ़ी मुदलिल है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बताया कि कल मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने कौमी असम्बली के हल्का NA-65 में तरक्याती कामों से मुताल्लिक दस्तावेज़ात भेजी हैं। क्या सड़क की तामीर के लिए मखसूस हल्कों को फ़र्ज दिए जा सकते हैं? क्या हल्के में सड़क के लिए फ़र्ज देना कानून के मुताबिक है? हम दुश्मन नहीं, आवाम के पैसे और आइन के मुहाफ़िज़ हैं। सरकारी मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 1 से लेकर 19 ग्रेड तक 25% अलाउंस दे रही हैं। 20, 21, 22 ग्रेड की तनख्वाहें बजट में बढ़ाई जा रही हैं। परवेज़ खट्टक का कहना था कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए अपग्रेडेशन का भी फैसला कर लिया गया है। जून में बजट के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज जो ये फैसला हुआ है इसकी बकायदा शेख हफीज़ साहब से भी मैंने मुलाकात करके इसकी अप्रूवल ली है, मिनिस्टर फिनांस सेक्रेटरी साहब से भी, और ख़ुद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास चल के गया कि ये हमारे मेहनत कश लोग हैं, ये 1 साल से इस मसले में उलझे हुए हैं। सो 1 से लेके 19 ग्रेड तक इनको 25% का ये जो अलाउंस है ये दिया जा रहा है। 20, 21, 22 की तनख्वाहों का इजाफा भी बजट में किया जाए। एवरेज निकाला गया, उस एवरेज तकरीबन 60% फ़र्क है ये फेडरल एम्प्लॉइज़ के बीच में। हम इनको एडॉक रिलीफ 25% का सारे फेडरल एम्प्लॉइज़ को देंगे। इन सब के लिए अपग्रेडेशन का फ़ैसला किया गया और ये जून बजट से के बाद शुरू हो जाएगा। एडॉक रिलीफ वो भी इंशाल्लाह इनके पे स्केल में जून बजट में मर्ज हो जाएगा। हम इनको टाइम स्केल का अप्रूवल देंगे, लेकिन फ़ैसला ये होगा कि उसका तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा। इमीडिएट जो है आज फाइनेंस से हम नोटिफाई करा देंगे। इमीडिएट जो रिलीफ है एडॉक रिलीफ, ये जब तक पे कमीशन का फ़ैसला नहीं आएगा तब तक ये जारी रहेगा, और जब पे कमीशन का फ़ैसला आ जाएगा फिर हो सकता है उसमें बेहतर हो जाए। हम एक डायरेक्शन देंगे सूबाई हुकूमत को कि ये फ़ैसले यहाँ पर वफाक हो चुके, तो आप भी अपने एम्प्लॉयज़ के बिठाएँ और जो फ़र्क है तनख्वाहों में उसको डील करें। तो माजी में लोगों ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन बुनियादी तब्दीलियाँ इमरान खान लेके आ रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रही है आपकी और डिस्पैरिटी ख़त्म हो रही है कि एक आदमी फ़र्ज़ करें 20,000 ले रहा है, दूसरा 80,000 ले रहा है। क्यों इतना फ़र्क है? ये फ़र्क मिटाने इमरान खान आया है। लाहौर के इलाके मनावा में मस्जिद का गुंबद गिरने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3 हो गई। हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाबर खान मजीद डिटेल्स देंगे। बाबर बताइएगा, इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल हो गई हैं? बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका मनावा है जहाँ पर एक निजी सोसाइटी में ज़ेर तमीर मस्जिद का गुंबद गिरने से 11 अफराद मलबे तले आकर जख्मी हो गए थे। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ 3 अफराद जख्मों की ताबना लाते हुए दम तोड़ गए, जिनमें जाहिर, शफीज और नाज़म बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले ये तमाम मजदूर हैं, वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। रेस्क्यू टीमों ने अब ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया बाबर खान। तुर्की और पाकिस्तान ब्रादर्स 8 आर्म्स पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशकें अतातुर्क 11 स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हेडक्वार्टर्स तरबीला में जारी हैं। जगजान 2 कालिब, तुर्की और पाकिस्तान ब्रदर्स एट आर्म्स, दोनों दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पिछाड़ने के लिए पुरअज़्म। हेडक्वार्टर्स तरबेला में पाक तुर्क कमांडोज की मुश्तरका फौजी मशकें।
ترک 11 تربیتی مشقوں میں انسداد دہشت گردی، یرغمالیوں کی رہائی، ہیلی کاپٹرز کے آپریشن سمیت مختلف ڈرلز کی جا رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے جوان اور افسران ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ 3 ہفتے جاری رہنے والی ایکسرسائز میں سرچ آپریشن، کوارٹر بیٹل اور چھاتا بردار آپریشنز کی مشقیں بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال کورونا کے باوجود 11 بین الاقوامی تربیتی مشقیں کی گئیں، جبکہ اس سال 25 انٹرنیشنل تربیتی مشقیں کی جائیں گی۔ پاک بحریہ نے کثیر الملک کی بحری مشق امن 21 کا نغمہ امن کی پکار جاری کر دیا۔ یہ خصوصی نغمہ اردو اور انگریزی زبان کا امتزاج ہے۔ اس نغمے میں امن پسند ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونے کا پیغام اور دیگر بحری افواج کو پاک بحریہ کی کاوشوں کا ساتھ دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.